Today in this presentation, I will teach you the chapter named Rocks and Minerals. Have you ever looked at a rock and wondered, what secrets does it hold? क्या आपने कभी किसी पत्थर को देखा है और सोचा है, इसमें कौन से रहस्य छिपे हैं? Today, we'll dive deep into the chapter on rocks and minerals. आज हम शिलाएं और खनिज अध्याय में गहराई से जानेंगे. First up, let's break down the structure of our earth. सबसे पहले, चलिए पृथ्वी की संरचना को समझते हैं. At the center lies the core, mainly solid metal. Can you imagine the heat? बीच में होता है केंद्रक, कोर, जो मुख्य रूप से ठोस धातु का बना होता है. क्या आप उसकी गर्मी की कल्पना कर सकते हैं? Surrounding it is the mantle, a mix of solid and molten rock, a true geological wonder. इसके चारों ओर होता है मेंटल, जो ठोस और पिघली हुई चट्टानों का मिश्रण है, एक अद्भुत भूवैज्ञानिक आश्चर्य. Finally, the crust, the layer we walk on, full of rocks and minerals. अंत में, भूपरपटी, क्रस्ट, वह परत जिस पर हम चलते हैं, जो शिलाओं और खनिजों से भरी हुई है. So, what exactly are rocks? They are solid mineral substances found everywhere. तो आखिर शिलाएं क्या है? ये ठोस खनिज पदार्थ है, जो हर जगह पाए जाते हैं. Rocks are mixes of minerals, and they aren't just sitting there. They are busy shaping our planet. शिलाएं खनिजों का मिश्रण होती है, और ये बस पड़ी नहीं रहती, बल्कि ये हमारी पृथ्वी को आकार देती रहती है. Now, let's dive into the 3 types of rocks based on how they form. अब चलिए शिलाओं के 3 प्रकारों को देखते हैं, जो उनके बनने के तरीके पर आधारित है. First up, we have igneous rocks. They're the original fire rocks from cooled magma and lava. सबसे पहले है आग्नेय शिलाएं. ये ठंडी हुई मैग्मा और लावा से बनी मूल आग की चट्टानें हैं. Examples include granite, perfect for your stunning countertops, and basalt, strong enough for roads. उदाहरण है ग्रेनाइट, जो सुंदर काउंटरटॉप्स के लिए उपयुक्त है, और बेसाल्ट, जो सड़कों के लिए पर्याप्त मजबूत है. Don't forget pumice, light as a feather and perfect for scrubbing, और obsidian, sharp and sleek for jewelry. pumice को मत भूलिए, पंख जितना हल्का और रगड़ने के लिए उत्तम, या obsidian, तेज और चमकदार, आभूषणों के लिए. Next, we explore sedimentary rocks, formed from layers of sediments pressed together over time. इसके बाद, हम अवसादी शिलाओं को देखते हैं, जो समय के साथ दबे हुए अवसादों की परतों से बनती. Think sandstone, perfect for building, or limestone, a must-have for paper and even chewing gum. सोचिए बलुआ पत्थर, जो निर्माण के लिए उत्तम है, या चूना पत्थर, जो कागज और यहाँ तक कि च्यूइंग गम के लिए भी जरूरी है. And let's not overlook shale, made from mud, great for roads and even classrooms as blackboards. और शेल को नज़रअंदाज मत कीजिए, जो मिट्टी से बना होता है, सड़कों और कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड के लिए भी उत्तम. Now, enter the world of metamorphic rocks, transformed by heat and pressure deep inside the earth. अब आइए रूपांतरित शिलाओं की दुनिया में, जो पृथ्वी के भीतर गर्मी और दबाव से बदल जाती है. Marble, polished and beautiful, comes from limestone. Can you imagine the heat? बीच में होता है केंद्रक, कोर, जो मुख्य रूप से ठोस धातु का बना होता है. Slate is born from shale, known for its durability in roofing and that classroom blackboard you loved. स्लेट शेल से बनता है, जो छतों में टिकाऊपन और कक्षाओं के ब्लैकबोर्ड के लिए प्रसिद्ध है. And quartzite, hard and rugged, perfect for making glass and ceramics. और क्वार्टजाइट, कठोर और मजबूत, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उत्तम. Don't forget gneiss, recognized for its striped design, often used in construction. ग्नाइस को मत भूलिए, जो अपनी धारीदार बनावट के लिए जाना जाता है, निर्माण में अक्सर उपयोग होता है. Now, what are minerals? They are the building blocks of rocks, each with unique attributes. तो खनिज क्या है? ये शिलाओं के निर्माण खंड है, और हर एक के अपने अलग गुण होते हैं. These inorganic substances can create everything from jewelry to your everyday utensils. ये अकार्बनिक पदार्थ आभूषणों से लेकर आपके रोजमर्रा के बर्तनों तक सब कुछ बना सकते हैं. Take feldspar or quartz, common and versatile. Plus,
देयर्स गोल्ड, अ क्लासिक फेवरेट फेल्डस्पार या क्वार्ट्ज को लीजिए, सामान्य और बहुउपयोगी। और हाँ, सोना भी है, हमेशा पसंदीदा, बट मिनरल्स आर नॉट जस्ट प्रिटी, थिंक टैल्क फॉर पाउडर और आयरन फॉर स्टर्डी स्टील। लेकिन खनिज सिर्फ सुंदर ही नहीं होते, सोचिए टैल्क पाउडर के लिए, या लोहा, मजबूत इस्पात के लिए, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दो स्पार्कलिंग जेम्स, डायमंड्स, रूबीज एंड एमरल्ड्स, और उन चमकदार रत्नों को मत भूलिए, हीरे, मानिक और पन्ने। नेक्स्ट अप, लेट्स टॉक अबाउट फॉसिल्स, रेमनेंट्स ऑफ एंशिएंट लाइफ ट्रैप्ड इन रॉक्स। अब बात करते हैं जीवाश्मों की, जो प्राचीन जीवन के अवशेष है और शिलाओं में फंसे होते हैं। These fossils give us a glimpse into what life was like millions of years ago. ये जीवाश्म हमें यह झलक दिखाते हैं कि लाखों वर्ष पहले जीवन कैसा था। Let's not forget about fossil fuels, formed from ancient plants and animals. जीवाश्म ईंधनों को भी मत भूलिए, जो प्राचीन पौधों और जानवरों से बने हैं। कोल, पेट्रोलियम and natural gas. They power our world but are limited. Let's conserve these precious resources with alternative energy and wise usage.